अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Here, scalar quantities do not require a direction, while vector quantities require a direction. Okay, scalar quantities do not require direction to be expressed. So the quantities, for example, time is measured in seconds, expressed in seconds, and mass is expressed in kgs. So we do not need a direction to specify mass of an object uh, or any distance. 5 meters का distance है तो उसके लिए भी कोई direction required नहीं है. On the other hand, there are some quantities which require direction to be expressed. Without the expression of direction, that quantity will be incomplete. ठीक है, एक मिनट में presentation भी बनाइए, वो share कर लेते हैं. This one. Okay, so which has no direction is called scalar quantity. So examples: time, area, volume, temperature, and work, power, energy, density. All of these are examples of scalar quantities. All of these quantities do not require any direction to be expressed. They need only magnitude in proper units. तो यूनिट तो होता ही है, जाहिर सी बात है, as you know. लाइक अगर टाइम को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो सेकंड्स में और आवर्स में, और इट कैन बी मिली सेकेंड्स. एरिया के लिए आपके पास मीटर स्क्वायर्स है, एंड सो ऑन. तो इन सबकी यूनिट्स तो हैं. मैग्नीट्यूड को आप यूनिट्स में एक्सप्रेस करेंगे, प्रॉपर यूनिट्स में, बट डायरेक्शन इज नॉट नीडेड. स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करना हो तो सिंपल अरिथमेटिक रूल्स आप यूज करते हैं एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के. सो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल मेंशन की हुई है, राइस को अगर आपने ऐड करना है, इफ यू हैव 2 bags of rice, 2 kg and 5 kg, then you can simply add them and you will get an addition of 7 kgs bag. ठीक है जी, तो ये तो हो गई स्केलर क्वांटिटीज. If we discuss the vector quantities, so vector quantity is the one which require both magnitude in proper units and a direction as well. तो कोई मुझे एग्जांपल्स देंगे जी वेक्टर क्वांटिटीज की? एक तो एग्जांपल यहाँ पे फोर्स की गिवन है. जब भी आपको फोर्स गिवन होगी, so for example a force of 5 newtons, so there will be a direction needed as well. In which direction? Right, left, up, down. ठीक है जी. तो फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट बैठे हुए हैं और मैं उनसे कह दूं को यू नीड टू डिलीवर अ पंच, तो वो पंच की डायरेक्शन बतानी होगी ना. योर क्लासमेट ऑन योर राइट साइड टू योर लेफ्ट साइड, एंड और द क्लासमेट सिटिंग अहेड ऑफ यू और एट योर बैक. तो डायरेक्शन बताऊंगा तो तभी आप उसको पंच डिलीवर कर पाएंगे. तो उसमें डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बगैर डायरेक्शन के जो है वो आप कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, वो इंस्ट्रक्शन को आप कंप्लीट नहीं कर सकते. सो फोर्स नीड्स डायरेक्शन. अच्छा, मैं इस प्रेजेंटेशन को बड़ा कर लूँ ना, मुझे थोड़ा सा. यस, am I audible to all of you? Audible. और ये अब मैंने ये प्रेजेंटेशन भी बड़ी कर दी, तो आई गेस you that's visible. तो मुझे आप बीच में बताते रहें, क्योंकि ऑनलाइन में
जाहिर सी बात है कुछ वैसा एक्सपीरियंस नहीं होता है एग्जैक्ट एक्सपीरियंस, बट वी कैन इम्प्रूव दैट. So other examples of vector quantities are displacement. So now we know the difference between distance and displacement. Distance is also a length, but it has no direction, and displacement is a length which is in specific direction or which is on a straight line. Weight, अच्छा वेट की तो हम कभी भी डायरेक्शन नहीं बताते हैं, तो वेट कैसे वेक्टर क्वांटिटी हो गई? सर वेट हमेशा उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ ही होती है बिकॉज It's इट्स टुवर्ड्स द always अर्थ. directed to the center of the earth. बिल्कुल सही जी. So drag or friction, and then velocity, acceleration, turning effective force. Turning effective force की क्या डायरेक्शन होती है? Is it right, left, or east, west, or कि किस टर्म्स में बताते हैं हम टर्निंग इफेक्टिव फोर्स की डायरेक्शन? Clockwise, anti-clockwise. Clockwise or anti. That's good, बेटा. ठीक है जी. So we can differentiate between a scalar and vector quantities, and we can give some examples as well. And if we are given some quantities, so we can classify as scalars and vectors. अच्छा, अब तो ये इमेज बड़ा हो गया. क्या इसको चल थोड़ा छोटा कर देते हैं. अच्छा जी, next we discussed that we can add scalar quantities algebraically. ठीक है जी. And if we have to add vector quantities, what will happen? तो यहाँ पर सबसे पहले जब हमें वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करना होगा, उससे पहले हमें वेक्टर क्वांटिटीज को ड्रॉ करना होगा. We will have to represent that vector quantity. So for example, here we are going to represent a vector quantity of that's a force. ठीक है जी. अच्छा, यहाँ पर ये मेंशन नहीं फोर्स कितना है, तो चले हम अपनी तरफ से ले लेते हैं. For example, here we have a force of 20 newtons, which is acting at an angle of 45 degrees from horizontal. तो आपने जो बेस लाइन एक ड्रॉ की हुई है इस डायग्राम में, दैट इज डॉटेड लाइन. So from that dotted line, you have drawn an angle of 45 degrees. तो मुझे सब लोग बताएं. सर हमें एंगल का बताया हुआ होगा क्वेश्चन में. Yes, beta. Either you will be told about the angle, or you will be told about the east, west, south, and or it can be some in some other terms also. Like you can, it can always be said that this angle from horizontal, or any there will be any given point. For example, आपको ऐसे भी कह सकते हैं there is an angle of 60 degrees between two forces. मतलब उसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं बताया, लेकिन सिर्फ ये बता दिया कि between two forces there is an angle of 60 degrees. तो हम एक अगर फोर्स ड्रॉ करेंगे तो उससे 60 डिग्री एंगल लेकर फिर हम दूसरी फोर्स ड्रॉ कर सकते हैं. So there will be some direction specified which will be easily able to understand and draw. तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आपने जो है वो प्रोट्रैक्टर यूज करना है. Tell me, have you used the protractor in some examples, in some lab activity? Have you ever used that? When we were studying the chapter of light. किसमें बेटा? Repeat that. In light. लाइट के जो आपने प्रैक्टिकल्स किए थे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें आपने प्रोट्रैक्टर यूज किया था, डी यूज किया था. ठीक है जी. एंड विद द हेल्प ऑफ दैट डी आपने एंगल ड्रॉ भी किया था और एंगल मेजर भी किया था. ठीक है जी. डी इज टू वेज, राइट से भी उसकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है और लेफ्ट से भी. तो बेसिकली उस पर दो रीडिंग्स ड्रॉ की हुई होती हैं, दो आपके पास कैलिब्रेशंस होती हैं. ठीक है जी. So there is a 0 degree from right side and there is a 0 degree from left side as well, and there is a baseline. So basically D is a half circle. ठीक है जी. It is labeled with 180 degrees, and at the center there is a center point. कभी आपने आइडेंटिफाई किया कि सेंटर पर जब आपका जो पॉइंट होता है D में, उसको एक कॉन्वेक्स शेप दी हुई होती है.
so that it's showing the center point in a magnified way. ऐसा देखा है कभी आपने? ऐसा D कभी देखा है आपने? Look at the protractors what you have. I hope some of you will have that protractor. आपका जो प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट होगा, यस सर। ठीक है जी, उस सेंटर पॉइंट पे जो आपके पास एक कॉन्वेक्स शेप होगा, सो दैट आप सेंटर पॉइंट को मैग्निफाइड व्यू में देख पाए. So it is specifically designed like that because सेंटर पॉइंट को एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पे अलाइन करना बहुत जरूरी है. ठीक है जी, अगर आप उसको सेंटर पॉइंट पे अलाइन नहीं करेंगे और बेस लाइन को बेस लाइन पे नहीं रखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली एक जीरो एरर इंट्रोड्यूस कर देंगे. और आप जितना भी एंगल करेक्टली मेजर कर लें, जब आप बेस लाइन पे एरर कर रहे होंगे तो आपका जो एंगल है उसमें आपको एरर मिल जाएगा. ठीक है जी. सो अभी मैं आप सबसे चाहता हूँ, अच्छा पहले ये कंप्लीट कर लें. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में आपको गिवन है, लिख लें जरा, force of 20 newtons, force of 20 newtons acting at an angle of 45 degrees to the horizontal. Force of 20 newtons acting at an angle of 45 degrees to the horizontal. Or you can also say acting at an angle of 45 degrees from east. So आपने पहले क्वेश्चन लिख लिया. अब मैं बता दूं इसमें ड्रॉ कैसे किया हुआ है, फिर आई विल गिव यू अ मिनट टू गिव यू सम टाइम, आप इसको खुद ड्रॉ कीजिए. ठीक है जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको मैग्नीट्यूड गिवन है 20 न्यूटन्स का, तो वो 20 न्यूटन्स एग्जैक्टली आप जब अपने पेज पर ड्रॉ करने लगेंगे तो सबसे पहले तो मैटर करता है आपका अवेलेबल एरिया. आपको हाफ पेज अवेलेबल है, फुल पेज अवेलेबल है, आपको एक स्मॉलर रीजन अवेलेबल है. तो जितना आपको स्पेस अवेलेबल होगी उसके हिसाब से आप स्केल सेट करेंगे. जैसे यहाँ पर इन्होंने स्केल सेट किया 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो अगर मैं 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कंसिडर करूं तो 20 न्यूटन्स के लिए कितना सेंटीमीटर्स लेंथ बनेगी? 4 सेंटीमीटर। 4 centimeters. If 5 newtons depict 1 centimeter, then 20 newtons can be shown with a line of 4 centimeters. तो ये तो आपके पास length of vector हो गया, which is giving you the magnitude of your vector. तो length of the arrow gives you the magnitude of the vector, and the direction of the arrow gives you the डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. तो उसके लिए आपको वेक्टर को स्पेसिफिक डायरेक्शन में ड्रॉ करना होगा. तो इसमें देखें क्या किया, सबसे पहले बेस लाइन ड्रॉ की है, या बेस लाइन हो सकता है पहले से बनी हुई. Repeat what the length and the other thing represent. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दी लेंथ, लेकिन जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसकी मैग्नीट्यूड होती है सबसे पहले. जैसे मैंने आपको जो वेक्टर क्वांटिटी बताई उसकी मैग्नीट्यूड कितना है, 20 न्यूटन है. अब वो 20 न्यूटन को एज इट इज आप पेज पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. ठीक है जी. मतलब आपको मैंने कहा ना, हाफ पेज अवेलेबल हो सकता है, फुल पेज या और भी क्वार्टर पेज भी अवेलेबल हो सकता है. सो यू हैव डिफरेंट अवेलेबल स्पेस गिवन टू यू. तो आपको कोई ना कोई स्केल सेट करना पड़ता है. जैसे मैप में होता है ना, मैप में पाकिस्तान इतना सा बना होता है, बट एक्चुअली देयर इज अ स्केल ऑन दैट मैप, जो कि आपने ज्योग्राफी में कभी देखा होगा. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू आवर स्पेस अवेलेबल हमें एक स्केल सेट करना होगा. तो यहाँ पर इन्होंने स्केल सेट किया है 5 newtons is equals to 1 centimeter. There can be a different scale as well. मैं ये भी ले सकता था 4 newtons is equals to 1 centimeter. तो अभी जैसे इन्होंने लिया हुआ 5 newtons is equals to 1 centimeter, so according to that, अगर मैं अपनी 20 newtons force के लिए 20 newton force के लिए फाइंड आउट करूंगा कि कितना होना चाहिए लेंथ, so that will be 4 centimeters. ठीक है जी. तो इसका मतलब है कि अगर मैं 4 सेंटीमीटर्स की लाइन ड्रॉ कर दूं तो दैट विल बी शोइंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 20 न्यूटन्स. ठीक है बेटा, आप क्लियर है इल्सा? Yes, sir. Thank you. ओके.
सो स्केल इज अप टू यू, अगेन आई विल से स्केल इज अप टू यू। आपने स्केल ऐसा सेट करना है कि आपकी वेक्टर डायग्राम आपके गिवन पेज पर आ जाए, ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक बड़ा पेज अवेलेबल होता, मुझे एक बड़ा A4 साइज से भी ज्यादा पेज अवेलेबल होता, तो मैं कुछ ऐसा स्केल सेट कर सकता था दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेता, तो मेरे पास 20 न्यूटन्स के लिए बन जाती लाइन 20 सेंटीमीटर्स की। बट यूज केस में करता अगर मेरे पास एक बिगर स्पेस अवेलेबल होता। लेकिन अब मेरे पास जो स्केल डायग्राम होता है उसके लिए ऑलमोस्ट हाफ पेज अवेलेबल होता है, तो उसके हिसाब से आप इमेजिन कर सकते हैं, आप अपने जर्नल पे जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे दैट विल बी अकॉर्डिंगली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए डायरेक्शन पे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बेस लाइन गिवन होती है कुछ ना कुछ, ठीक है जी। अगर आपको बेस लाइन गिवन नहीं है तो आप वो खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो आपके पास ये देखें बेस लाइन, उन्होंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, बोल्ड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है जी। और लाइन ड्रॉ करने के बाद दिस इज योर सेंटर पॉइंट, दिस इज योर सेंटर पॉइंट, और अपनी डी को आप रखेंगे ऐसे, दिस इज योर डी। ठीक है जी, आप अपनी डी को ऐसे रखेंगे, डी पर ये 0 डिग्री शो कर रहा होगा। तो सेंटर पॉइंट और 0 डिग्रीज को आप बेस लाइन से अलाइन करेंगे प्रोट्रैक्टर के, और आप 45 डिग्रीज का एंगल, जो आपकी डी पर 45 डिग्रीज एंगल शो कर रहा होगा, ठीक है जी, वहां पर आप एक डॉट लगा। सबसे पहले तो जब आप डी रखेंगे ना बेस लाइन पर अलाइन करके, तो 45 डिग्रीज पर आप एक डॉट लगा देंगे, फिर आप डी को रिमूव करेंगे और सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पासिंग थ्रू दिस डॉट, ठीक है जी, सो दैट वी योर वेक्टर, ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेप में आपने एंगल ड्रॉ किया है और उस पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक एरो ड्रॉ कर दिया। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि आप उसको 4 सेंटीमीटर्स लेंथ उसकी कंसिडर करेंगे। तो फिर आप स्केल रखिएगा और उसको 4 सेंटीमीटर लेंथ कंसिडर करके उस एरो को लिमिट कर दीजिएगा 4 सेंटीमीटर्स पर। तो जहां पर वो लाइन 4 सेंटीमीटर्स कंप्लीट कर रही होगी, बाकी लाइन इरेज कर दीजिएगा और वहां पर एक एरो हेड प्लेस कर दीजिएगा, which will be showing you a vector of 4 centimeters with an angle of 45 degrees. तो अब सब लोग जरा ये करें अपने पास, टेक 1 मिनट, ठीक है जी। फिर हम इसको, अगर कुछ क्वेरी है तो पूछे मेरे से। अच्छा, यहाँ पर Sir, baseline will be also 4 centimeters. नहीं बेटा, बेस लाइन की तो आपको कोई लेंथ अवेलेबल नहीं है। बेस लाइन तो एक स्टैंडर्ड लाइन है ना, विच हैज नो लेंथ। वो ऐसे हो सकता है जब आप जर्नल पे ड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो रूल्ड जर्नल होता है, तो उसमें कोई भी लाइन आप अपनी बेस लाइन कंसिडर कर लें, उसमें एक सेंटर पॉइंट रखें और डी रख दें। तो बेस लाइन की लेंथ को तो आप यूज नहीं कर रहे हैं, आपने जो लेंथ यूज करनी है सिर्फ वो अपने वेक्टर की यूज करनी है, जो आप वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर योर फोर्स। तो बेस लाइन की लेंथ मैटर नहीं कर रही है, बेस लाइन का सिर्फ सेंटर पॉइंट मैटर कर रहा है, ठीक है विष्णु, ऐसा ही। बेस लाइन की आप सर जब हम बना रहे हो ओके जब हम बना रहे हो तो हमें स्केल मेंशन करना होगा। जी बेटा, स्केल आपको पहले से सेट करना होगा। मैंने आपको बताया ना कि आपको जो फोर्स गिवन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 20 न्यूटन्स की फोर्स गिवन थी, अब मैं आपको दे देता 100 न्यूटन्स की फोर्स दे देता कि आपको एक फोर्स ड्रॉ करनी है 100 न्यूटन्स की और यही एंगल है। तो फिर आप ये स्केल यूज नहीं कर सकते थे। फिर आप अगर लेते 5 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 100 न्यूटन फोर्स के लिए बन जाता 20 सेंटीमीटर की लाइन बन जाती, जो आप A4 साइज पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते थे, ठीक है जी। तो फिर आपको अपना स्केल चेंज करना पड़ता था, फिर आपको कुछ ऐसा स्केल रखना पड़ता कि 20 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और आपके पास 100 न्यूटन बन जाते 5 सेंटीमीटर्स। तो आपको जो क्वांटिटी गिवन है ना वेक्टर की, उसके हिसाब से आप अपना स्केल सेट करेंगे सो दैट आपका जो वेक्टर है वो आपकी गिवन स्पेस पर आ जाए, ठीक है बेटा। स्केल गिवन नहीं है, आपने खुद से सेट करना। So all of you draw a vector representing a force of 20 newtons acting at an angle of 45 degrees from east or from horizontal.
अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट्स लेट आए हैं तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं. We are discussing, at first we discuss scalars and vectors. तो हमने कुछ quantities discuss की which are scalars, कुछ quantities discuss की which are vectors. फिर हमने देखा अगर स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करना हो तो उनको अरिथमेटिकली सिंपली आप ऐड कर सकते हैं. ठीक है जी. और अगर आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज हो तो उनको आप अरिथमेटिकली ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन मैटर करती है. ठीक है जी. तो हमें उनको ड्रॉ करना पड़ेगा उन वेक्टर क्वांटिटीज को और फिर उन वेक्टर्स को ऐड करना पड़ेगा. सो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग एडिशन ऑफ फैक्टर्स. ठीक है जी, किसी ने ड्रॉ कर लिया वेक्टर 20 न्यूटन्स का Yes, sir. at an angle of 45 degrees. So tell me if all of you are able to do that. अगर कोई नहीं कर पाए तो मुझे बताएं so that we can hear your problem. Okay, it's done. बाकी लोग भी बताएं बेटा अगर किसी से नहीं हुआ है. So I hope all of you have the apparatus or the your geometry box with you. उसमें आपके पास कंपास होनी चाहिए. ठीक है जी. एक पेंसिल सिर्फ कंपास के लिए रख लें और नॉर्मली जो कंपास की पेंसिल होती है वो स्मॉलर साइज होती है ताकि वो कंपास में उसकी मूवमेंट में हिंडर नहीं करे. ठीक है जी. तो एक स्मॉलर पेंसिल कंपास में फिट कर लें. इट शुड बी शार्पन्ड वेल. और एक पेंसिल अलग से रख लें पेंसिल वर्क के लिए. ठीक है जी. एक आपके पास स्केल होना चाहिए. इट्स बेटर टू बी ट्रांसपेरेंट. और क्या होना चाहिए? एक प्रोट्रैक्टर होना चाहिए डी. ठीक है जी. एंड इरेजर, शार्पनर. सो ये आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए. आई होप ऑल ऑफ यू हैव इट विद यू. तो मैं चाह रहा था आप साथ साथ ड्रॉ करते जाएं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे और हम इस टाइम में जो है वो अपना इस टॉपिक को ही कंप्लीट कर लें. ठीक है, तो मैं समझूं कि सबने कंप्लीट कर लिया या कुछ स्टूडेंट्स को कुछ टाइम चाहिए? कंप्लीटेड. ओके. बाकी भी बताएं. अबीरा एंड अबीरा और कौन है? अबीरा एंड आयशा एंड जोबिया एंड जैना एंड तहरीम एंड अलीजा. आई विल बी वेटिंग फॉर यू. आप लोग कंप्लीट कर लें. तो जैना ओके. व्हाट अबाउट तहरीम एंड अबीरा? ओके. अच्छा जी, अब थोड़ा सा स्पाइसेस तो होनी चाहिए ना, तो हम कुछ और लेकर आते हैं फोर्सेस. सो ये मैं पहले इरेज कर दूं. यस. ओके. सो यहाँ पर देखें, मैं जो डायरेक्शन है, ओके, डायरेक्शन को डिफरेंट वेज में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ. जैसे यहाँ पर देखें, फर्स्ट जो कमांड है, जो फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने उसको डिफरेंट वेज में स्ट्रेट किया हुआ है. सबसे पहले तो जब मैं आपसे कहता हूँ ना 45 डिग्रीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है जी, तो उसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ a given force which is acting at 45 degrees north of east or northeast or 45 degrees from horizontal. So these are some alternate terminologies which I am using for the same vector quantity. जरा देखें, ये आपके पास जो वेक्टर बना हुआ है at the top, क्या आप इसके लिए ये टर्मिनोलॉजीज यूज कर सकते हैं? 45 डिग्रीज नॉर्थ ईस्ट. सो नॉर्थ ईस्ट का मतलब होगा बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट. ठीक है जी. या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 45 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि ईस्ट टू नॉर्थ जाते हुए 45 डिग्रीज.
बताएं बेटा, ये सबको क्लियर होता है? Yes, sir. अच्छा, अब इसको देखें, जो टॉप Yes, और sir. बॉटम पर है, टॉप और बॉटम दोनों पर 45 डिग्रीज के एंगल ड्रॉ किए हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। जो बॉटम पर डायग्राम है उसमें 45 डिग्रीज का जो एंगल ड्रॉ किया हुआ है वो बिलो दी हॉरिजॉन्टल है। तो उसको मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा? उसको मैंने डिफरेंशिएट किया ऐसे। अच्छा, वो मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कह दिया, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। A given displacement of force which is acting 45 degrees south of east. तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ 45 डिग्रीज, और अगर मैं कहूं साउथ ऑफ ईस्ट मींस ईस्ट से साउथ जाते हुए 45 डिग्रीज। क्लियर होता है बेटा? Yes, sir. अच्छा, ये दोनों जरा ड्रॉ कर लें अपने पास, नॉट एग्जैक्टली स्केच कर लें और इनके कमांड वर्ड्स लिख लें। अच्छा जी, चैट में कुछ क्वेश्चंस हैं आई गेस, जस्ट 5 सेकंड्स। ठीक है बेटा, ये स्केच कर लें अपने पास और इनके कमांड वर्ड्स लिख लें। जो टॉप वन है वो क्या है? 45 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और जो बॉटम पर है वो है 45 डिग्रीज साउथ ऑफ ईस्ट। डन बेटा? Just a minute. सर तो अगर वो लोग बोलेंगे 45 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट तो फिर उसकी लाइन दूसरे एंड से बनेगी। ओके, अगर वो बोलते हैं 45 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट, सो दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट एंड दिस इज योर सेंटर पॉइंट। तो अगर वो आपसे बोल रहे हैं 45 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट, सो आई ड्रॉ एन एंगल of, now see, this is a line which is showing 45 degrees when we are moving north from west. I'll show an arrow here like this, 45 degrees north of west, यानी कि west to north जाते हुए 45 degrees. ओके सर। ठीक है बेटा? तो I'll move on. ओके, अच्छा, अगर आपके पास पैरेलल वेक्टर्स हों और वेक्टर्स आपके पास opposite direction में, so you can simply add those vectors. For example, you have a force of 3 newtons and you have a force of 7 newtons, so you can simply add those vectors. For example, कौन स्टूडेंट है नहीं यहाँ पे, अलीजा एक फोर्स अप्लाई करते हैं एक डेस्क को ड्रैग करने के लिए, और साथ ही रोमेसा भी फोर्स अप्लाई करते हैं सेम डायरेक्शन में उस डेस्क को ड्रैग करने के लिए, तो उन दोनों की फोर्सेस एड अप हो जाएंगी। ठीक है जी? तो फॉर एग्जांपल रोमेसा यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 3 न्यूटन्स की और अलीजा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 7 न्यूटन्स की। इसका मतलब है कलेक्टिवली 10 न्यूटन्स की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कोई भी वर्क करने के लिए, या फॉर एग्जांपल कोई डेस्क को ड्रैग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह दे विल बी एबल टू ड्रैग दैट थिंग
लेकिन अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 10 न्यूटन की फोर्स है टू राइट साइड और टू ईस्ट, और उसके बाद 3 न्यूटन की फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में, तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर कौन से स्टूडेंट है जी, मरियम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन की टू ईस्ट टू राइट साइड, और खदीजा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 3 न्यूटन की इन अपोजिट डायरेक्शन, तो हु विल बी एबल टू मूव दैट ऑब्जेक्ट? अगर मरियम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन की टू राइट साइड और खदीजा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 3 न्यूटन की टू लेफ्ट साइड, सो किसकी चलेगी जी? माइट इज राइट, जिसकी 10 न्यूटन मरियम। फोर्स, मरियम। सो जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी वो हो जाएगी 7 न्यूटन की हो जाएगी टू राइट साइड। ऐसे ही है बेटा? ठीक है ना? Yes, sir. ओके अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि जी, sir. लेफ्ट और राइट में हो, वी आर टॉकिंग अबाउट सेम डायरेक्शन। सो इट बॉटम पर आपको शो किया हुआ है, अगर 4 न्यूटन की फोर्सेस अप्लाई कर रही हो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अगर उनकी डायरेक्शन सेम है, पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो एडिशन विल बी 8 न्यूटन्स। मूविंग ऑन। अच्छा जी, अब आ जाएं, अगर आपके पास वेक्टर्स पैरेलल नहीं हो, ठीक है जी, एंड आपके पास एट एन एंगल हो, सो हियर आई होप आप पूरा पेज रीड कर पा रहे हैं, या इसको मुझे मूव करने की जरूरत है? It's visible. नहीं सर, नजर आ रहा है। ओके तो यहाँ पर देखें, टू फोर्सेस गिवन है, देयर इज अ फोर्स F1 व्हिच इज 15 न्यूटन्स टू ईस्ट। अच्छा, लेस देन 1 मिनट है, मीटिंग एंड हो जाएगी, तो रिजॉइन कीजिएगा जितना हो जाए। F1 है फोर्स 15 न्यूटन्स टू ईस्ट, और F2 है 20 न्यूटन्स 60 डिग्रीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले आप क्या करें, कोई बेस लाइन रखें, अगर नहीं है तो ड्रॉ कर लें, उस पर एक सेंटर पॉइंट ड्रॉ कर लें, और ये दोनों फोर्सेस रिप्रेजेंट कर लें। फिर हम देखते हैं इन दोनों फोर्सेस को ऐड कैसे करना है। तो मैंने वैसे यहाँ पर स्टेप वाइज शो किया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, एक थी ना 15 न्यूटन्स टू ईस्ट, तो सबसे पहले मुझे जरा बताएं अप्रोप्रिएट स्केल क्या बनेगा। एक फोर्स है 15 न्यूटन्स की, एक है 20 न्यूटन्स की, तो अप्रोप्रिएट स्केल क्या बनेगा इन फोर्सेस को? Sir, we can take 1 centimeter for 5 newtons, and then for F1 it would be 3 centimeters, and for F2